Welcome back. In our last session, we had started the chapter Principles of Management along with NCERT. And सबसे पहले हम लोगों ने किया था What are principles and what are principles of management? And then we did its significance. हमने उसके जो significance है वो start किया था. Now, today we will be moving towards Taylor's scientific management as well as Fayol's general principle. When I summarized the chapter, I had given you the names of two versatile management persons. One, that is Taylor, who is called as the father of scientific management. मतलब scientific management का मतलब हो जाता है the stream where the thoughts are referred as classical. Classical का मतलब हो जाता थोड़ा सा पुराना. And the other two streams belonging to the classical schools are Fayol's and Max Weber's bureaucracy. लेकिन हम लोग जो है we would be only doing with Taylor as well as Fayol's, not about, right? आपके पेपर के अंदर जो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जो है what he was और उनको क्या बोलते हैं ये दो चीजें आती हैं. He was an American mechanical engineer. ये मतलब this is one of the very repeated questions in the paper. Who sought to improve industrial efficiency. As I that day I told you कि उनके जो principles हैं वो आपके जो है implement होते हैं at the workshop level. That is at the industry level. In 1874, he became an apprentice mechanist, learning factory conditions at the grassroots level. Apprentice matlab the person who is taking the training. He earned a degree in mechanical engineer. He was one of the intellectual leaders of the efficiency movement and was highly influential in reshaping the factory system. You must appreciate that he belonged to the era of industrial revolution characterized by mass production. That is the main thing. Taylor's contribution must be seen in the light of efforts made to perfect the factory system of production. मतलब ये उनके लिए आपने जो है जो लर्न करना है या फिर उनको क्या बोलते हैं बेसिकली उन्होंने किस चीज पे किया था दिस कम्स. उसके अलावा आपकी बहुत ज्यादा इसमें मतलब एग्जैक्टली नहीं आता है. ही द वन ही हैड इंट्रोड्यूस्ड पीस रेट वेट सिस्टम, ये वाला उनका है. देन मतलब कि ही उनकी जो है मतलब उनकी जो कंपनी थी वो सोल आउट हो गई थी इसीलिए. ही इज नोन एज द कॉइनेज ऑफ टर्म scientific management. In his article The Principle of Scientific Management in 1911, he had मतलब उन्होंने जो है ये टर्म को कॉइन किया था. After being fired from Bethlehem Steel Company, he wrote a book Shop Floor, which is for which he was even selected. तो ये आपको सारा कुछ नहीं करना है. बेसिकली क्लास 12th ही वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेज. देन उनका वो क्या थे, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी. देन उन्होंने कौन सा इंट्रोड्यूस किया था, एक जो है डिफरेंशियल पीस, और ही वाज वन हु हैड रीशेप द फैक्ट्री सिस्टम. आपको इतना ही याद रखना है. नाउ लेट अस गो टू द ओरिजिनल वन. In the earlier days of industrial revolution, in the absence of theory of factory organization, ये उस वक्त की बात है जब सिर्फ इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई थी. The factory owners or managers relied on personal judgment in attending to the problems they confronted in course of managing their work. Natural है कि जब आपका काम छोटा है और you don't have any rules and regulations which you need to form, तो आप क्या करते हो, अपने हिसाब से करते हो. You are doing it accordingly. जो आपको समझ आया वो आपने किया. तो this is what is referred to rule of thumb. थंब का मतलब क्या होता है, मतलब अंगूठा छाप. This is what referred as the rule of thumb. Managing factories by rule of thumb enabled them to handle the situation, but suffered from the limitation of a trial and approach. Trial and approach का मतलब क्या है,
चलो करके देखते, let us see what happens. For their experience to be emulated, it was important to know what works and why does it work. So there was a need to follow an approach, that is the method based on science, defining a problem, developing the alternative solutions, anticipating the consequences. Anticipating मतलब पहले से ही सोचना, what can be, measuring the progress and drawing conclusions. And Taylor emerged as a father of scientific management. As I said that this you might be having in your father in your exam कि उनको क्या बोला जाता है. He proposed scientific management as opposed to rule of thumb. He broke up human activity into small portions, that is what we say as division of work, and found how it could be done effectively in less time and with increased productivity. And it implies to all the business activities according to standardized tools, methods, trained personnel, सबके लिए उसने जो है cost effect को किया. This paragraph is very important and this came as a case study in the paper. In the words of Taylor, scientific management means knowing exactly what you want your men to do, seeing that it is the best and cheapest way. The place where he worked himself achieved threefold increase in productivity by application of scientific management principles. तो क्या क्या थे वो principles? First, science not rule of thumb. Taylor pioneered the इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक, मतलब आपको जो है किसी भी हिट एंड ट्रायल, ओके ऐसा करके देखते हैं यार, ऐसा करके देखते हैं, कई बार हम लोग करते हैं ना, लेट अस गो फ्रॉम दिस वे, चल देखते तो हैं, but it should not be. What he mean to say, in the factory where you are dealing with the people, वहां पे you need to inquire into the domain of management practice. मतलब हाँ, रूल ऑफ थंब के अपने थोड़े से लिमिटेशंस है. As different managers follow their indigenous rule of thumb, it is but a statement of the obvious that it would not be equally effective. Taylor believed there was only one best method to maximize efficiency. ये सारा जो है आपके स्टडी के अंदर मेथड स्टडी में आता, लेकिन ये आपका जो है रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नॉट रूल ऑफ थंब. मतलब आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. दीज आर प्रिंसिपल्स. अगर आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल और आपके पेपर के अंदर जो है ये वाला आ जाए, तो देन इट इज कॉल्ड एज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. और अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द टेक्निक, तो मेथड स्टडी. सेम वर्ड्स बट टू डिफरेंट क्वेश्चंस. This method can be developed through study and analysis. The method so developed should substitute rule of thumb throughout the organization. Scientific method involved investigation of traditional method through work study, unifying the best practices, developing a standard method which would be followed throughout the organization. ये वाला जो क्वेश्चन था, this came as a बोर्ड के अंदर ये पूरा आया था एंड आपसे पूछा गया था कि व्हाट डज इट रेफर टू, मतलब कौन सा प्रिंसिपल है. अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिक्स ऑफ आयरन, छोटे छोटे जो आयरन के into boxcar can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and materials. The more sophisticated the process, greater would be sink. मतलब उनका कहना था कि छोटी सी छोटी चीजें भी, मतलब even loading and unloading के लिए भी, if you are developing a scientific method to how to, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि instead of, कई बार क्या होता है हम चीजों को कैरी करते हैं, कैरी करने की जगह इफ वी आर पुटिंग इट इनटू सम, आप लिफ्ट में लेकर जाते हो या क्रेन से पुल करते हो, तो उससे कितना फर्क पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल जो आपके हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, जहां पर पहले क्या होता था, जब मतलब 2 फ्लोर्स 3 फ्लोर्स होती थी, तो द
लेबर्स यूज टू कैरी द लोड्स ऑन देयर हेड्स, वो अपने सर पर लेकर जाते थे, मतलब 2 फ्लोर चलते थे. एंड देन आई रिमेम्बर, मतलब कि देवर, मतलब कि ऐसा भी होता, अभी भी अब मैंने देखा है, मतलब आई हैव सीन इट, जहाँ 2 फ्लोर्स या 3 फ्लोर्स बंदे, यू डोंट हैव दीज काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज. सो व्हाट दे वुड डू इज, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ऊपर जाना है तो सीढ़ियां नहीं बनी है, तो एक मेक ओवर शिफ्ट ओवर बना देते हैं, जिसमें वो एक ऐसा बिल्कुल स्लोप सा बना देते हैं जिससे सामान आराम से नीचे उतर के आ जाए. दैट्स आपका साइंटिफिक. नाउ वेयर देयर यू आर हैविंग 10, 12, 25, 30, वहां आप क्या करोगे? तो वहां पर इफ यू सी वर्किंग, मतलब अगर आप देखोगे तो देर आर लॉन्ग क्रेन्स जो पूरे डायरेक्शंस में मूव हो जाते हैं. देन दे आर आल्सो हैविंग जो लिफ्ट, मतलब कि लिफ्टिंग के लिए आपके क्रेन्स होते हैं. सो दैट इज हाउ वी हैव डिजाइन. In the present context, the use of internet has brought dramatic improvements in internal efficiencies and customer satisfaction. Harmony, not discord. The first was science, not rule of thumb, and these are all the principles of, not the techniques. Factory system of production implied the manager as a link between owners and workers. Since as managers, supervisory level पर हमारे जो managers होते हैं, they had the mandate to get work done from the workers. It should not be difficult for you to appreciate that there always existed the possibility of kind of class conflict. Now, what is the meaning of class conflict? Means मैं superior, तुम inferior. We belong to the officer cadre, you belong to the worker cadre. The manager versus worker. Taylor recognized that this conflict helped none, the workers, the managers or the factory owners. क्योंकि ये उस वक्त में है जब आपकी लेवल ऑफ हिरार्कीज कम होती थी, जहां पर आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल नहीं होते थे. मोस्ट ऑफ द टाइम द फैक्ट्री ओनर्स, उसको मैनेज करने वाले सुपरवाइजर्स और नीचे वर्कर्स. He emphasized that there should be complete harmony between the workers and management. Both should realize that each one is important. And this, again, very, 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 very important, he called as mental revolution. Mental revolution मतलब the setup of our mind. आपको समझ आना चाहिए कि मैनेजर उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैनेजर को समझ आना चाहिए वर्कर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. It means management and workers to transform their thinking. In such a situation, even trade unions will not think on going on strike. क्योंकि जब स्ट्राइक होती है तो नुकसान सिर्फ कंपनी का नहीं होता है, वर्कर्स का भी होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम management should share the gains of the company, if any, with workers. At the same time, workers should work hard and be willing to embrace change for the good of the company. Both should be part of family. This particular pick, like aisa jo pick hai, this will be telling you what is this. Is it harmony, not discord? Both should be, according to Taylor, scientific management has for its foundation the firm conviction, true interest of the two are one and same. भाई, एम्प्लॉयर का प्रोस्पेक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक वर्कर्स नहीं काम करेंगे. वर्कर्स तब तक खुश नहीं हो सकते हैं जब तक आपकी कंपनी ना काम करे. सो इट इज फॉर बोथ. जापान में क्या होता है नॉर्मली, वहां पर अभी भी है, दे हैव रियली, मतलब उनके तो बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं. दिस इज ओनली वन एग्जांपल, दे हैव मेनी एग्जांपल्स. In Japanese companies, paternalistic style of management is practiced. What is the meaning of paternal style? This also comes in the paper. Paternal मतलब जहां जो ओनर है फैक्ट्री का, he acts like a father. The father ruled company. There is complete openness between the management and worker. If in case workers go to strike, they wear a black badge but work more than normal working hours to gain the sympathy of management.
हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, पत्थर उठाते हैं, ईंट उठाते हैं और उसके बाद कहते हैं ये मतलब कि मुर्दाबाद। वहां ऐसा नहीं करते हैं। इंस्टेड दे डोंट टॉक, दे वुड बी वियरिंग अ ब्लैक बैच। और उसके वहां पर ऐसे बड़े सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैनेजमेंट ने क्या किया था वहां पर, उनके मैनेजमेंट ने, जैसे जापानीज कंपनीज के अंदर दे कंप्लीटली चेंज द सिस्टम की हर एक इंसान को थोड़ी सी नींद की जरूरत होती है। सो वहां पर क्या होता है, while you are working, whether you are a worker, manager or anyone, you have the option to take nap। आप सो सकते हो। और सोने का मतलब ये नहीं कि आप खराटा मार के आप चद्दर ओढ़ के सो गए, नो। ऑन योर टेबल यू हैव दैट कि आप 10-15 मिनट यू कैन ब्रिंक योरसेल्फ एंड यू कैन टेक द नैप, नोबडी वुड क्वेश्चन यू। तो उनके यहाँ पर क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ हार्मनी। दे अंडरस्टैंड दैट वर्कर्स की भी उतनी नीड होती है। और वर्कर्स वहां पर क्या करते हैं, दे ऑल्सो गो फॉर सच। इवन वहां पे जो डॉक्टर्स हैं, व्हेन दे गो ऑन अ स्ट्राइक, द डॉक्टर्स डोंट लीव देयर जॉब्स। द ओनली थिंग इज they would not be cooperating to certain sectors, they would be wearing the black badge or black apron to show their anger. Cooperation, not individualism. देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन। अब ये जो हमने पहले पढ़ा था ना, ये उसका एक्सटेंशन है, मतलब आगे का। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इट्स एन एक्सटेंशन, मीन्स देयर शुड नॉट बी कॉम्पिटिशन। बोथ शुड रियलाइज दे नीड, मतलब एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यहां पर क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब आपको मिलजुल कर काम करना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सबका काम इक्वल है। यहाँ पर क्या है कि यू शुड नॉट शो योर सुपीरियरिटी, यू शुड नॉट, मतलब कि आपको सुपरसीड नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। अगर एम्प्लॉय सजेशंस देता है तो कोई बात नहीं, आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हो। दे शुड बी इनफैक्ट रिवॉर्डेड। अगर आपको लगता है दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, आप वर्कर्स को भी ले सकते हो। आप वर्कर्स से उस लेवल पर बात कर सकते हो जहां उनके काम के लिए देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम्स। यू कैन नॉट टेक देम इनटू द ऑफिस। आप ऑफिस का काम नहीं बता सकते हो, आप उनको शेयर्स के बारे में नहीं पूछ सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं कर सकते हो, लेकिन जहां उनका मशीन है, जहां उनका काम है, जहां उनको, यू कैन डेफिनेटली टेक देयर सजेशंस। दैट्स कोऑपरेशन। At the same time, the workers should desist from going on strike, making unreasonable demands on the management. There should be an open communication system and a good way. Paternalistic style of management whereby the employer takes care of the needs of employees would prevail as in case of Japanese companies. अभी मैंने आपको बताया था paternal मतलब जहां the owner acts like a father, वो अपने मतलब अपने जो एम्प्लॉयज है उनका ध्यान रखता है। So there should be always an equal division of work and responsibility between workers and management. All the day long, management should work almost side by side with workers, helping, encouraging, smoothing the way for it. This is only possible बेटा जहां आप सुपरवाइजर और जहां आपका मैनेजमेंट से है। जहां आप मिडिल मैनेजमेंट कह रहे हो वहां पर ये चीज नहीं है, वेयर यू आर डीलिंग एक्चुअली विद द व्हाट यू कॉल एज अ वर्कर्स। क्योंकि वर्कर्स की अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सर्टेन टाइम्स देयर आर अनरीजनेबल डिमांड्स आल्सो, इट्स नॉट लाइक कि दे आर ऑलवेज राइट, देयर आर सर्टेन टाइम्स अनरीजनेबल डिमांड्स, सो दैट चेंज शुड बी देयर। फोर्थ लास्ट, sorry, next is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। अब होता क्या है, कई बार हम ऐसे इंसान को नौकरी पर रख देते हैं जिसका शायद मेंटल या फिर आपका जो फिजिकल लेवल है वो इतना अच्छा नहीं होता है। देन व्हाट विल हैपन, उस सिचुएशन में व्हाट विल हैपन इज अ पर्सन माइट बी, उसका जो लेवल है वो किसी और चीज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है,
but for the work which he has been roped up, जिस काम के लिए उसको नौकरी पे लगाया है, शायद वो काम वो उस तरीके से कर नहीं सकता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, while you are recruiting, यानी कि जब आप उनको नौकरी पे रख रहे हो, उस वक्त भी पहले आपको उनके लेवल के अकॉर्डिंग रखना चाहिए. जो काम देते हो उनके मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी के अनुसार देना चाहिए. जहां जरूरत हो वहां ट्रेनिंग भी देनी चाहिए. These are all the points that comes in your exam. Industrial efficiency depends to a large extent on personal competence. As such, scientific management also stood for worker department. Worker training was essential also to learn the best method developed as a consequence of scientific approach. Taylor was of the view that the concern for efficiency could be built in the right from the process of employee selection. ये आपका पूरा ऐसा है जो पूरे का पूरा आपका पेपर में आता है, आया था, एंड इट वाज आस्क्ड कि ये किस चीज को रिलेट करता है. ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड. नाउ साइंटिफिकली का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी. जैसे हम लोग आजकल क्या है, इन ऑल योर एग्जाम्स, दैट्स व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू, लाइक आपके यूजीसी के हमारे नेट एग्जाम्स होते हैं, या फिर आपके सीयूईटी के एग्जाम्स हैं, एमबीए के एग्जाम्स हैं, कहीं पर भी क्या होता है, हमारा फिजिकल मेंटल, मतलब एनडीए वगैरह में तो फिजिकल स्टेमिना को भी देखा जाता है, लेकिन इन दी मैनेजमेंट कैटेगरी आपका जो है आईक्यू लेवल वगैरह देखा जाता है. तो उसका कहने का मतलब है, उसको हम साइंटिफिक बोलते हैं. देन वर्क should suit her physical, mental and intellectual capabilities. To increase efficiency, they should be given the required training. Efficient employees would produce more and earn more. This will ensure greater efficiency and prosperity for both company and workers. यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो वर्कर है, जो करंट वर्कर है या आने वाला वर्कर है, दोनों ही एफिशिएंट हो, तो उसके लिए आपको पहले सिलेक्शन प्रोसीजर से ही ध्यान करना चाहिए. एंड दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल इन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आज की डेट पर, सबसे ज्यादा आज की डेट पर है. As I said that next year when you would be giving your entrance exams for various universities, these are the where मतलब कि डोमेन्स जहां आपको सिलेक्ट करा जाएगा. आपका मेंटल कैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल, पर्सनालिटी. यस, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी इज टेकन ओनली वेयर यू रिक्वायर फिजिकल स्टेमिना, लाइक आपका एनडीए है या फिर आपका बीएसएफ वगैरह. वहां पर बाकी जगहों पर सब कुछ देखा जाता है. So these are the principles which were developed by Taylor, that is father of scientific method. Now in टेलर के ही जो ये प्रिंसिपल्स थे, जो वो चाहते थे कि इसको अप्लाई करें, इनको उन्होंने तरीकों से, मतलब कि ही एक्सपेरिमेंटेड एंड ही गेव इट कि आप किस तरीके से ये जो 4 प्रिंसिपल्स हमने ऊपर पढ़े हैं, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, या फिर आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है, या कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, या इनको हम कैसे करें. फंक्शनल फोरमैनशिप, इसको तो आप लोग क्लास 12 कितनी बार भी पढ़ोगे, यू विल डेफिनेटली हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स. आई टेल यू वेयर द प्रॉब्लम वुड कम, दैट आल्सो आई टेल यू. उनका मानना था कि जब हम एक वर्कर काम करता है, तो वर्कर कहाँ काम करता है? फैक्ट्री में. तो फैक्ट्री को ही, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए हैं, उसका कहने का मतलब है कि एक पूरा साइट शुड बी प्रोडक्शन एंड अनदर शुड बी प्लानिंग. जहां प्लानिंग है वहां वर्कर उन चीजों को पाता है जो उसको उठाना है, एंड प्रोडक्शन इज द वेयर एक्चुअल एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड. In the factory system, the foreman represents the managerial figure. मतलब जो foreman होता है, supervisor, he is the one who is the manager, because it is with whom the workers are in face-to-face contact on daily basis, right? ये तो हमने पढ़ा है. So he is the pivot around whom revolves the entire production planning, implementation and control. Thus,
Taylor concentrated on improving the in performance of the role in the factory setup. जो मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री के सेटअप में ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री के अंदर अलग है, उसका कहने का मतलब है जब वर्कर अंदर जाता है तो ये चीजें पहले और ये चीजें बाद में होनी चाहिए. He has already identified the list of qualities a superman or supervised should there, and no single person can have. एक इंसान के अंदर 8 डिफरेंट क्वालिटीज नहीं हो सकती हैं. तो वो कहता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप आप 8 अलग पर्सन जिनमें वो अलग अलग क्वालिटीज हैं उन्हें रखो. टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन को हम लोग लेकर आते हैं अंडर प्रोडक्शन, एंड प्लानिंग इज आपका जहां हम प्लान कर रहे हैं. This concept was extended to the lowest level of shop floor, and it is called as functional foremanship. Means under the factory manager there was a planning in charge and a production in charge. Under planning in charge there are 4 people. ये पेपर में आपके आता है, एंड लास्ट ईयर अभी तक यही प्रॉब्लम आई है कि इन चारों के काम बच्चों को समझ नहीं आते हैं. अंडर प्लानिंग मतलब जब हम सामान अभी हमने काम करना शुरू नहीं किया, वी हैव जस्ट थॉट कि कैसे कैसे करना है. तो देर आर 4 पर्सोनल. एक का नाम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यानी कि वो वर्कर को इंस्ट्रक्ट करेगा. सेकेंड इज द नेक्स्ट रूट क्लर्क, जो उसको बताएगा व्हाट शुड बी द मेथड. देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो उसको बताएगा इसको आपने कितने टाइम के अंदर और कितने टारगेट आपका कितने रुपए के अंदर होना चाहिए. एंड द फोर्थ वन हु वुड बी अ डिसिप्लिनरी, यानी कि वो डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा. These 4 personnel would draft instructions for the workers, specify the route of production, prepare time and cost sheet and ensure discipline. ये हमारे थे प्लानिंग के अंदर. अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज पर्सोनल वुड वर्क, ये आपका वो है जहां काम हो रहा है. द स्पीड बॉस, द मोस्ट 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 आई थिंक अभी तक मुझे जो आया है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. यानी कि स्पीड बॉस आपके टाइम को, दीज रिस्पेक्टिव वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली accurate completion, keep the machines and tools ready, ensure proper working of the machines and tools and check the quality of work. स्पीड वाला स्पीड को देखेगा. गैंग बॉस जो है, याद रखना प्लीज हमेशा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज क्वेश्चन. गैंग बॉस इज द वन हु कीप्स द मशीन्स एंड टूल्स रेडी, मतलब वो उस मतलब कि उसके अंडर सारे मशीन और टूल्स होंगे. यानी कि अगर मशीन बाहर रखी हुई है तो उसका जो इंचार्ज है उसको चलाना, उसका सारा काम करना वो उसका काम है. लेकिन अगर मशीन खराब हो गई है तो देन द रिपेयर बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग इट रिपेयर्ड. यानी कि 2 अलग इंसान इन काम करते हैं. एक मशीन की देखरेख करता है, दूसरा रिपेयर करता है. एंड द इंस्पेक्टर जब काम आपका बन के आ गया तो उसकी क्वालिटी को चेक करता है. Functional foremanship is an extension of principle of division of work and specialization. लेकिन it is also the contrast to unity of command. Each worker will have to take orders from these 8 foreman. ये आपके 8 foreman है. And ये 8 अलग अलग जो है, एक वर्कमैन जब अंदर आता है ये इंस्ट्रक्ट करता है, ये उसको तरीका बताता है, ये टाइम एंड कॉस्ट को बताता है और ये डिसिप्लिन को मेंटेन करता है. ये स्पीड को चेक करेगा, ये देखेगा मशीनें चल रही हैं, मतलब मशीनों को चलाना, उनका मतलब कि रख रखाव करना, वो रिपेयर अगर खराब हो गया है उसको ठीक करके देना, एंड क्वालिटी को चेक करना. सो दीज आर 8 पीपल. इनके ऊपर आपके 2 इंचार्जेस होंगे, एंड अल्टीमेटली देयर वुड बी 1 फैक्ट्री मैनेजर जिनके अंदर ये काम करते हैं. So this is a complete functional foremanship. Foreman should have intelligence in education, tact, grit, judgment, special knowledge, manual dexterity, energy, honesty, and good.
अब ये सारे एक इंसान में नहीं होते हैं, इसलिए उसे 8 अलग इंसानों में बांट दिया है. For example, those with technical mastery, intelligence, and grit may be given planning. Those with energy and good may be given to execution. जो चलने फिरने में, हेल्थ में अच्छा, उसको आप प्रोडक्शन में दो, जो देख सकता है, और जो आपका दिमाग से अच्छा, उसको प्लानिंग में लेकर जाओ. So this was what, and this is the answer. ये पेपर में कई बार आता है. Gang boss, repair boss, all the time there is always a confusion. Gang boss is one who keeps intact the things. Repair box उसे ठीक करता है. Standardization and simplification, this is also there in your marketing. आप सभी बच्चे, all of you might be eating what you call as potato chips. कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम खाते हैं, और आजकल तो देयर आर नंबर ऑफ चिप्स. तो जो पोटैटो चिप्स है, राइट, अब व्हाट काइंड ऑफ पोटैटोज यू आर गोइंग टू मेक द चिप्स. आप चिप्सोना लेना चाहते हो, छोटे वाला लेना चाहते हो, यानी कि देयर इज अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कि आप किस स्टैंडर्ड से चीजों को बनाते हैं. वेरस आप उसको आगे, अब आप जब मार्केट में जाते हो तो आपके पास अलग अलग चिप्स होते हैं, येलो कलर, रेड कलर, यानी कि क्लासिकल, अमेरिकन मतलब कि अनियन, मैक्सिकन डिलाइट करके अलग आते हैं. तो ये होता आपका ग्रेडिंग सिंप्लीफाई. उनका कहना है कि जब आप काम को कर रहे हो, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हो, तो देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड फॉर द रॉ मटेरियल्स. भाई क्या स्टैंडर्ड है, कितना, मतलब व्हाट शुड बी द एवरेज, यही रॉ मटेरियल यूज होगा, इतना ही टाइम होगा, यही हम मशीन को यूज करेंगे. एंड फर्दर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग साइज में बनाना पड़ता है. आप जूते बना रहे हो, तो जूते आपके जो है 6 से लेके 12 तक आपके स्टार्ट होते हैं, मतलब आपके अलग अलग नंबर्स होते हैं. बॉयज के लिए अलग नंबर्स होते हैं, गर्ल्स के लिए अलग होते हैं. तो वो आपको सिंप्लीफाई करना है. Taylor was an ardent supporter of standardization. He believed there should be a scientific method to analyze methods of production prevalent under the rule of thumb. The best practices can be kept and further refined to develop a standard which can be followed. This can be done through work study techniques like time study, motion study, fatigue study, and method study, जो बाद में हम पढ़ेंगे. So he said that it may be pointed even contemporary techniques of business process, including re-engineering, then Kaizen and benchmarking are aimed at standardizing the work. Means the process of setting standard. जब आप सामान लाते हो तो रॉ मटेरियल्स, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड टाइम टेकन, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड मशीनरी मेथड, ये हमारे बेंचमार्क है जो हमें हमेशा याद रखना है. दैट वुड हेल्प यू. The objectives are to reduce a given line of product to fixed type, size or characteristic, to establish interchangeability of manufactured. अब देखो स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा तो आप मशीन, अगर माना जब हम लोग स्क्रू खराब हो जाता है, तो मे बी हमने जब खरीदा था वो कोई और स्क्रू था, लेकिन आज हमें जरूरत है. अगर स्टैंडर्डाइज है तो हमें पता वो 2 इंच वाला, 4 इंच वाला, 6 इंच वाला है. तो देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड. भाई अगर हम 4 जगह यूज करें तो द सेम स्टैंडर्ड शुड बी यूज्ड. To establish standard of excellence and quality in materials and performance. Simplification means eliminating superfluous variety, sizes and dimensions, while standardization means devising new variety instead of सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है आपके पास अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट है, so it results in saving of cost of labor, machine and tool. It implies reduced inventories, fuller utilization of equipment and increased turnover. Most large company like Nokia, Toyota and Microsoft have successfully implemented standardization and simplification.
और यही एक रीजन है। और आजकल तो सारी की सारी कंपनी सिंपली स्टैंडर्डाइज करती है, यानी कि हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ से लैपटॉप, तो उनका एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है कि व्हाट चिप दे आर गोइंग टू यूज, व्हाट इज द काइंड ऑफ उनके हार्ड डिस्क क्या होंगे, दैट इज। और सिंप्लीफाई होता है उसके अंदर जो साइजेस लेकर आ जाते हैं वो लोग, उसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 15 इंच, 14 इंच, 13 इंच। तो नेचुरल है कि जब आपका 15 इंच है तो वो अलग है, 14 इंच है तो वो अलग है, तो उसको उन्होंने आगे सिंप्लीफाई कर दिया। मेथड स्टडी, मेथड मतलब टू फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। अभी आपको मैंने बताया था कि वो जो क्रेन वाला इंसिडेंट बताया था, व्हेन वी आर टेकिंग अप, अगर आप सामान को ऊपर लेकर जा रहे हो, विच कैन बी द बेस्ट मेथड, मतलब उसमें वो मेथड और मोशन दोनों में आता है। तो मेथड इज टू डिटरमाइन द बेस्ट वे, देर आर सेवरल पैरामीटर्स, जैसे राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स को कैसे लेकर आना है, फाइनल गुड्स कस्टमर तक कहां तक जाएगी, आपका रॉ मटेरियल से लेकर, सॉरी आई एम सो सॉरी, रॉ मटेरियल से लेकर आपके फिनिश्ड गुड्स तक जो है, यू आर हैविंग द प्रोडक्शन यूनिट। टेलर डिवाइस द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, ये अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जो असेंबली लाइन वाला जो ये प्रोडक्ट था, दिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फोर्ड। जो फोर्ड मोटर्स अमेरिका का है, दे हैड यूज द असेंबली लाइन एट द वेरी फर्स्ट। असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है, वन बाय वन, अ सीक्वेंस। आप स्कूल के अंदर असेंबली लाइन में खड़े होते हो, आप स्कूल के अंदर कंपनी खड़े होते हो। Ford Motor Company used this concept very successfully. Now all the automobiles companies are using. The objective of whole exercise is to minimize the cost of production, maximize the quality and satisfaction. Means पूरा एक ऑपरेशन चार्ट किया जाता है, एंड देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस जो बताता है कहां पर क्या कैसे होगा, 1 2 3 4 5, दिस इज आपका, एंड दिस इज पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। Motion. Now, motion means movement of your hands, lifting, putting object, sitting, changing position. आपको ही पता है, थोड़ी देर बैठे you will feel backache. थोड़ी देर बैठे आपको बोरिंग लगेगा, तो there should be unnecessary. So that means while you are working, आपने देखा होगा आजकल ergonomic chairs आते हैं. There are certain types of chairs which relax your stress level. तो उसी तरीके से while you are working in a factory, unnecessary movements are sought to be eliminated, जिससे आप कम से कम टाइम में एंड efficiently आप करते हो. Taylor and his associate Frank Gilbert were able to reduce motions in bricklaying. Taylor demonstrated productivity increased to about 4 times. मतलब वो motions रखने चाहिए जो ज्यादा productive हो, and which are incidental, motions which are unproductive उसको देखना चाहिए. Taylor used stopwatches, various symbols and colors to identify different motions. Through motion, he was able to design suitable equipment and tools to educate workers on their use. और इसी वजह से बहुत फायदा हो जाता है. टाइम स्टडी, किसी भी एक चीज को, अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन में टाइम इज ऑल्सो देयर. You must have seen in your schools when you are studying, the teachers normally give you the time of 3 hours. अगर आपका यूनिट टेस्ट हो तो 1 hour, 1 hour के बाद आपने नहीं किया तो छीन लेते हैं. तो दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ टाइम स्टडी. एवरी वर्क कैन बी डन इन अ मिनिमम टाइम. देखो मेरे मतलब कोई भी होता है, a person, there might be 3 person, one person might be doing it before, one might be on the time and another might exceed. So we need to take a balance. It determines the standard time taken to perform a well defined job. Time measuring devices are used for each element of task. The standard time is fixed for the whole of the talk by taking several readings. As I said कि एक मतलब कि टेस्ट किया जाता है कितनी देर में. जैसे आपने देखा होगा, इफ यू गो टू द मतलब की फैक्ट्री, वहां पर
हर एक चीज में होता है कि ये इतनी देर में 1 मिनट में इतने प्रिंट्स देता है। तो दैट मीन्स अगर एक इंसान एक मतलब कि एक प्रिंटर इतने मिनट में इतना प्रिंटर दे रहा है, तो दैट मीन्स एवरेज वो कितना दे सकता है, तो एक इंसान कितना प्रिंटिंग निकाल सकता है। तो देयर इज अ वर्क, उसको पहले एक बार जो है चेक करके देखा जाता है, एंड देन द टास्क इज फिक्स्ड। The method of time study will depend upon the volume, frequency of the task, the cycle of operation and time measurement cost. मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको, मेनली आपके पेपर का क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, उससे आपको पता लगेगा द ऑब्जेक्टिव। The objective of time study is to determine the number of workers। अगर हम एक काम को, आपने वो बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर 10 एक इंसान एक काम को 1 घंटे में करता तो 10 इंसान उसको कितने में कर सकता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली दैट इज एक्चुअली क्विज, बट ऐसे क्वेश्चंस क्या है कि कितना, अगर आपके पास 500 टारगेट है और एक इंसान जो है 1 घंटे में 100 कर सकता है और 500 है तो हमें 5 चाहिए, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। एंड देन उसके अकॉर्डिंग वर्कर को हम कितना पैसा दे सकते हैं और कितना। अगर मान लो हमने 10 इंसान रख लिए और एक इंसान 100 यूनिट्स कर ही रहा है, तो 10 इंसान के रखने का तो फायदा नहीं हुआ ना, बिकॉज द वर्क विल बी डन इन द सेम टाइम। For example, on the basis of several observation, it was मतलब कि the standard time taken by worker to make one cardboard box is 20 minutes. So in 1 hour, he or she can make 3. Assuming the worker has to put 8 hours of work and deducting 1 hour for rest and lunch, 7 घंटे में a worker makes 21 boxes at 3 boxes per hour. Now this is the standard task a worker has to do. तो आप कर सकते हो। The next is fatigue. Anyone, whether you a child, whether a person, whether a teacher, whether a worker, would be physically and mentally tired after a time. If he or she does not rest while working, और वर्कर का काम में तो फिजिकल काम ज्यादा हो जाता है, तो the rest intervals will help one to regain the stamina and work again with the same capacity. दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज। अगर आप एक इंसान को कॉन्टिन्यूसली लिखने के लिए बोलते हो तो एंड में क्या होता है, वो सो जाता है। सो देयर शुड बी अ गैप। Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest intervals in completing, क्योंकि कुछ काम आपके बहुत टफ होते हैं जिसमें आपका फिजिकल स्टेमिना लगता है, कुछ आपके ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा नहीं लगता है, तो यू नीड टू। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली इन अ प्लांट, यहाँ प्लांट इज फॉर द फैक्ट्री, वर्क टेक प्लेस इन 3 शिफ्ट्स, दैट इज 24 आवर्स को 3 शिफ्ट में डिवाइड किया जाता है। Even in a single shift, a worker has to be given some interval for lunch. If the work involves heavy manual labor, then small pauses have to be given frequently. यही अभी आपको मैंने बताया। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनको 11 बजे और शाम को 4 बजे और दिन में 1 बजे 3 बार हम देते हैं। There can be many causes for fatigue like long working hours, unsuitable work, having uncordial relations with boss, working bad working condition, उसको हम improve कर सकते हैं। Last but not the least is differential piece wage system. This is again a complete contrast to Fayol's equal remuneration. टेलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग, इसी ने मतलब इनफैक्ट इंट्रोड्यूस किया था द पीस वेट सिस्टम। पीस मतलब टुकड़ों में, डिफरेंट मतलब अलग अलग, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर्स शुड बी डिटरमाइंड टू ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी। द वर्कर कैन देन बी क्लासिफाइड, जैसे यहाँ लिखा है कि 7 घंटे में एक मतलब कि वर्कर को 21 बॉक्स बनाना है। अगर मान लो दूसरा वर्कर सिर्फ 15 बना रहा है, दैट मीन्स द पर्सन इज इनएफिशिएंट। So he wanted to reward the efficient worker and he introduced a different
रेट ऑफ वेज सिस्टम, इसीलिए उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था फॉर दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ वर्कर इज 10 यूनिट्स पर डे, दोज हु मेड मोर देन और स्टैंडर्ड तो उनको 50 रुपीज, और जो उसे कम कर देते उसे 40. अकॉर्डिंग टू टेलर, द डिफरेंस ऑफ 190 रुपीज, ये 190 का मतलब यहाँ पे है कि उसको तो 550 रुपए मिले, दूसरे को 360 रुपए मिले. दिस मीन्स जिसको कम मिला ही वुड बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर, और जिसको ज्यादा मिला ही वुड बी हैप्पी दैट ही हैज गॉट अकॉर्डिंगली. सो दिस इज हाउ उसने जो है एक पूरा का पूरा चेंज किया था. एंड वी ऑलरेडी हैड डन दैट. टेलर जो है उसने मतलब मेंटल रेवोल्यूशन को चेंज किया था. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक. दैट मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है Taylor's idea lies not in the disjoint description of principles and techniques, but in the change of mindset. Mental revolution involves a change in the attitude of workers and management towards one another, from competition to cooperation. Both should realize they require each other. Both should aim to increase the size of surplus. This would eliminate the need for any agitation. मतलब दोनों लड़ाई नहीं करेंगे. Management should share a part of surplus, and workers should also contribute their might so that company makes profit. अबे छोड़ो ना, हमें क्यों काम करना, अगर ज्यादा काम करोगे तो you might be, तो उसके लिए the management should also be ready. This attitude will be good for the company. In the long run, only workers well-being will ensure prosperity of the business. ये हमारे इंडिया के अंदर जो है, if we say it has been successfully applied by Tata Motors. टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप जाते हो, यू विल फाइंड ऑल दीज, आप इन सबको देखोगे, मतलब मोशन स्टडी, वर्क, मतलब ये सारा कुछ है. इनफैक्ट वहां पर क्या है कि यू हैव एन इलेक्ट्रिक व्हीकल. एक मूवमेंट के लिए द वर्कर्स या सुपरवाइजर नीड नॉट वॉक डाउन, मतलब कि काम को इंश्योर करने के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए देयर इज एन ईवी इनसाइड जिसके अंदर वो जाते हैं. एंड टाइम टू टाइम टाटा हिमसेल्फ गोज एंड even has a work, मतलब कि उनके साथ बात भी करते. Today many new techniques have been developed as a sequel. Operation research was developed in the Second World War to optimize the deployment of war material. Similarly, assembly line was discovered by Taylor, which was used by Ford for Model T car. This concept is used even now. The latest development is lean manufacturing. Nowadays, robotics and computers are being used in production. This is part of scientific management. It has increased productivity levels. The techniques of operation research has also been developed, which are part result of scientific. मतलब पहले ये यूज होते थे, अब क्या है कि इनके अंदर हम लोगों ने चेंजेस भी लेकर आए हैं. अभी जैसे अगर हम लोग उसमें देखते हैं इन द व्हाट वी कॉल एज आईटी में, तो चैट जीपीटी हैज कम. व्हाट डज चैट जीपीटी डू? पहले क्या होता था, यू यूज टू हैव अ प्रॉपर कस्टमर सर्विस, मतलब क्यों. अभी क्या है कि विद द इम्प्रूवमेंट इन द एआई, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, दे हैव डिवाइस सर्टेन थिंग्स जिससे कि आपका कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी एंड बेटर परफॉर्मेंस आता है. सो दीज आर द एड ऑन. बट यस, अगर हम असेंबली लाइन कहते हैं तो टेलर को जाता है, और अगर हम कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन, दैट वाज आल्सो मतलब कि टेलर. एंड डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम वाज आल्सो कॉइन्ड बाय टेलर. सो दीज वर द प्रिंसिपल्स, एज वेल एज उन प्रिंसिपल्स को हमने वर्क लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, थ्रू व्हाट, पर मतलब कि जैसे हमने पढ़ा साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो जितने आपके स्टडी थे, जो मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी है, फटीग स्टडी है, दीज आर ऑल साइंस. दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट. क्यों हमें फटीग स्टडी करना है, क्यों हमें करना है. देन आपका जो सेकंड है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और आपका इंडिविजुअलिज्म, दैट कम्स अंडर द मेंटल रेवोल्यूशन. एंड देन आपके जो है
development of each and every personnel. तो that is coming under आपके differential fee space system also, जहां वो चाहते हैं कि training भी दी जाए and they should be awarded according to what the work they are doing. So these were the principles as well as the techniques of Taylor. In the next, we would be finishing off with Fayol.